All right, let me cut to Mumbai hit and run case. India Today has the biggest scoop in the case. Killer Brat admits to driving during the crash. So Mihir Shah, remember, he was absconding for nearly 3 days. He's finally been arrested, taken into custody, and while interrogation, he's admitted that he was the one driving when the car crashed into the bike. So attempts made by the father, Rajesh Shah, who's a politician with the Shiv Sena Shinde camp, the ruling regime right now in Maharashtra. The politician Rajesh Shah allegedly tried to protect his son by trying to pin the blame on the driver. Now, Mihir has admitted to the police that he indeed was driving the car. Culpable homicide charges has been filed against Mihir. He swapped the seat, shaved his beard to escape the law. Mihir was clean shaven when he was nabbed, clearly in an attempt to try and hoodwink cops who were trying to catch him. 16 teams of the Mumbai police had been launched. They had tried to cover different parts of Mumbai and Maharashtra to see where this man can be found. 24 years old, Mihir Shah has finally been arrested, and in the latest, we believe, he's admitted to driving the car. Did all that he could to escape the law by shaving his beard off. We know that Mihir Shah at this point, who's in police custody, he's admitted to driving the car when the crash happened. And most importantly, at this point, that bar that was selling the alcohol or offering alcohol to those people who were partying along with Mihir Shah has now faced the axe. The entire pub there has been bulldozed. This is the action that the Maharashtra government has taken, yet again, not very sure what the reason is, to bring down that bar that was serving liquor. Did the bar have no license to offer and sell liquor? Was it running beyond hours, legitimate hours? These are questions that one asks. We're waiting for a response on this. There's still no clarity on why the bar faces action. We're looking at this bar there, Tapas Bar in Juhu, Mumbai, which has been bulldozed, and those are the live visuals that we're bringing for you. This bar has been pulled up allegedly for serving alcohol beyond hours, beyond legal hours. In fact, we saw that Mihir Shah had walked out of the bar at 1:30 a.m. Now, until what time can bar be legally served in Mumbai? The alcohol be legally served at bars in Mumbai is something we've got to establish. I'm assuming 12 p.m. or 12 a.m., beg your pardon. 12 a.m., 12:30 a.m. could be the last when alcohol is served. But we know extensively bars sell alcohol with the doors shut in the front. Inside the bar, usually alcohol is served up until 1:30 a.m. This is almost the norm in most bars across the country. Doesn't seem like Mumbai or Tapas Bar is the only one who may have committed that crime. But at this point, we know that action has been taken against the bar owners. Their license has been pulled up and the bar has faced the axe. It's been bulldozed. At this point, we also hear news of Mihir Shah in custody admitting to driving that BMW car when the crash happened. Deepesh, who joins us more on that, to give us a quick brief on what really went by in the investigation. Deepesh, why don't you take us through the timeline? Mihir Shah, where was he hiding in the first place? He's now been arrested, admits that he was driving the car. And importantly, we're receiving visuals, live images of that Tapas bar being bulldozed. What's the reason for that bar owner to face action? Nabila, yes, if you have to say about the timeline, then after the accident, Mihir called his girlfriend and his dad and his father, who helped him to hide out. His father guided him to what to do and how to manage all the things. Like his father guided him to exchange the seats with the driver, so the driver could be held as an excuse. And after the accident, he went to Borivali to his girlfriend's house. His girlfriend is also his business partner. So after that, he stayed over there for 2 hours, and later on, when his mother and sister came, Mihir went with them to other locations. And the most important thing about the Tapas bar
in which he was partying with his friends day before the accident. Just before the accident, the car has been bulldozed now by the BMC. Yesterday, it was sealed by the excise department by giving the prior notice. According to the excise department, the car was not allowed to serve the hard liquor to the age of below 25, but the bar was serving liquor to the persons who are age was below 25. And the other end, there was also a violation of other excise rules and regulations due to which the excise department has sealed the car yesterday. But now, today, Mumbai Municipal Corporation is in action now on JR and they are bulldozing the car right now. According to the PMC, there have been certain violations in construction of the car and वो तोड़ा गया है। वाइज ग्लोबल टोपाज बार इस बार का नाम है। ये देखिए, एक और पूरा जो आप कह सकते हैं कि शीशे का जो ढांचा है वो इस वक्त गिरा दिया गया है। बीएमसी का ये एक्सकेवेटर है, बुलडोजर है जो इस वक्त दिख रहा है। जिस तरह से हिट एंड रन केस हुआ है, पुणे में हुआ था, मुंबई में हुआ, उसके बाद सरकार लगातार यही कहती आ रही है कि इस चीजों पर ड्रिंक एंड ड्राइव पर रोक लगानी है और कहीं ना कहीं जो भी बाज इसके लिए जिम्मेदार है, जो आप अपने आप कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस बार का ये जो ढांचा है ये इलीगल है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस बार को सील किया, उसके बाद आज तुरंत ही बीएमसी एक्शन मोड पर दिख रही है। कल बीएमसी ने इस पूरे बार का इंस्पेक्शन किया, मुआयना करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक्शन है वो एक्शन दिखना यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये आप कह सकते हैं बीएमसी, मुंबई पुलिस और एक्साइज का जॉइंट एक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये बुलडोजर को यहाँ पर लाकर ये दीवार रोड के बाहर की तरफ दिख रही है, उस दीवार को जो तोड़ने का काम है, जो डिमोलिशन का काम है, वो इस वक्त बीएमसी का बुलडोजर यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा जी बिल्कुल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार्रवाई आप घटना होने के बाद देखने के लिए मिल रही है। कल जो भी इस पूरी इलीगल स्ट्रक्चर इस बार कर रहा होगा उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल तो जरूर उठता यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि फिलहाल जो ये बार की जो भी केस में जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक इस बार की जो भी इलीगलिटीज है उस पर जो एक्शन है वो एक्शन देखने के लिए इस वक्त बीएमसी की तरफ से मिल रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है। ये अभी क्यों जागे और ऐसे ऐसे कितने बार्स हैं जिनके इलीगल स्ट्रक्चर है या माइनर्स को अल्कोहल सर्व कर रहे हैं या रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी प्रशासन नहीं दे रहा है, लेकिन उनको जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि आप कह सकते हैं मीर शाह एक एडल्ट है, वहां पर यहाँ पर अगर उन्होंने कल उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वहां पर शराब पी थी तो वो अपनी मर्जी से पी थी या जबरदस्ती पिलाई गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इस पूरे एक्शन से आप कह सकते हैं कि मुंबई में जितने बार है उन पर एक तरह से जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर फिर से इस तरह का हिट एंड रन एक्सीडेंट मुंबई में होता है। और वहां पर जो कार चालक है वो किस बार में उस दिन गया था, कहां पर उसने शराब पी थी, उसके बाद वहां पर एक्साइज की कार्रवाई हो सकती है। जो ये आप कह सकते हैं 2 साल से ये स्ट्रक्चर है, इलीगल स्ट्रक्चर जो भी है वो डेमोलिश किया जा रहा है। पीछे आकर अगर हम आपको थोड़ा दिखाएंगे कि रोड के बाहर ये स्ट्रक्चर आता हुआ थोड़ा दिख रहा है, शायद इसीलिए भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये वाइस ग्लोबल तपास बार जो है उसकी एंट्री है, ये रोड है, ये रोड के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर अभी कार्रवाई दिख रही है सीढ़ी से, ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से लेकर के जो पूरा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि इलीगल है, ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे जो है वो पूरी तरह से रोड है। आप अगर देखेंगे ये एक्सेस रोड है, एक्सेस रोड के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई पड़ रहा है, जिसके ऊपर बीएमसी इस वक्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है कि किसी भी तरह से आप कह सकते हैं All right, that's Mustafa Sheikh, who's right there on the ground while the bulldozer action is being taken. Let me cut across to Mustafa, who's explaining to us the reasons to why action has been taken on this bar. जिस वक्त मीर शाह ने इस पूरे बार में आप कह सकते हैं कि वो विजिट किया है या उन्होंने शराब पी है, तब इस बार को लाइसेंस था, तो बार मालिकों के खिलाफ कोई भी तरीके का कानूनी केस नहीं बन सकता है अनलेस मीर शाह इलीगल होते और उनको अल्कोहल सर्व किया गया होता। तो कानूनी कार्रवाई जो है उसको भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून में जो चीज बैठती है उस चीज को ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
जी बिल्कुल, देखिए हम आपको याद दिलाते हैं कि पुणे में हिट एंड रन केस हुआ। पुणे में हिट एंड रन केस हुआ, उसके बाद कई तरह की आप कह सकते हैं कि जो इलीगलिटीज हैं, जैसे कि आपने कहा कि देर रात तक शराब के बार चलते हैं, वो चीज सामने आई। जिसके बाद मुंबई में भी बार जो है वो नियमित समय जो है उसी तक चलते थे, उसके बाद बंद किए जाते थे, ये बात साफ है। अब ये चीज है कि वो शराब कब तक आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्व की गई है, तो उस समय में क्या एक्शन लिए जा रहे थे, क्योंकि पुणे हिट एंड रन केस ऑलरेडी हो चुका था। अगर बार जो नियमित समय है उससे ज्यादा चल रहे थे तो पुलिस के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जबकि अब पुणे हिट एंड रन केस होने के बाद मुंबई में भी ये सख्ती देखी गई थी कि बियर बार को जो है, पहली तो ये कि माइनस को अल्कोहल सर्व नहीं किया जाए, शराब सर्व नहीं की जाएगी, और दूसरा ये कि पूरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाने चाहिए, वो पहले नहीं किए गए, अब किए जा रहे हैं। ये तो सवाल बड़ा बनता ही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कानून के पास जिस तरीके के प्रोविजन है उस प्रोविजन, ये देखिए ये बड़ा स्ट्रक्चर अभी इस वक्त यहाँ पर गिराने जा रहा है। ये जेसीबी ऊपर की तरफ पहले कांच तोड़ी गई है, रेलिंग तोड़ी गई है, उसके बाद ये जो आप पूरा शेड है, ये शेड स्ट्रक्चर पर इस वक्त यहाँ पर आपको कह सकते हैं कार्रवाई होती हुई दिखेगी। जैसे ये लाइव दृश्य हम आपको जुहू के वाइस ग्लोबल तपास बार दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा ढांचा जो है, अब ये गिराने की कार्रवाई जो है ये देखने के लिए मिल रही है। ये देखिए ये पूरा ढांचा जो है ये गिरा दिया जाएगा, यानी कि ये रोड वो स्ट्रक्चर जो हिस्सा है वो हिस्से को पूरी तरह से कार्रवाई करती हुई बीएमसी दिख रही है। और सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन में ये पूरा जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ये कंप्लीट कर दी गई है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक तरह से इस बार को सील किया, उसके बाद बीएमसी ने इंस्पेक्शन किया है। बीएमसी ने इंस्पेक्शन में पाया है कि जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि इलीगल है, क्योंकि रोड पर आता हुआ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसीलिए ये पूरी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन इस वक्त तपास बार जो है वाइस ग्लोबल तपास बार उस पर दिख रहा है। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन सभी बार्स को या नाइट क्लब्स को जो आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, माइनस को अल्कोहल सर्व करते हैं, नियमित समय से ज्यादा समय तक चलते हैं, इन सभी को एक कड़ी चेतावनी इस वक्त ये बुलडोजर देता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। महाराष्ट्र में इस पूरे केस में आप कह सकते हैं कि राजनीति भी हुई है। महाराष्ट्र का जो विधानसभा का सेशन है वो वहां पर चल रहा है, उस पर जब मिहिर शाह को 3 दिनों तक अरेस्ट नहीं हुआ, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कई आलोचनाएं सरकार की गई, क्योंकि मिहिर शाह के जो फादर हैं वो शिवसेना एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये पूरा शेड हमारे सामने इस वक्त गिरता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। वाइस ग्लोबल तपास बार का पूरा शेड जो है वो इस वक्त गिराया जा रहा है साफ तौर पर। ये देखिए पूरा जो एरिया था, जो एक्स्ट्रा कवरेज यहाँ पर किया गया है इस रेस्टो बार की तरफ से, वो गिराया जा रहा है। बीएमसी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आप कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर इलीगल पाया गया है, और ये जो बार है इसका स्ट्रक्चर 2 साल पुराना है ऐसा बताया गया, यानी कि अल्ट्रेशन जो की गई है वो 2 साल पहले की गई होगी। इसको लेकर के आप कह सकते हैं कि सवाल उठ रहा है। और ये पूरा एक्शन एक तरफ से जो आप बाहर देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो अंदर भी जो बीएमसी के कर्मचारी है वो इस दरवाजे से अंदर गए हुए हैं, और अंदर का जो अल्ट्रेशन है इलीगल जो स्ट्रक्चर है इस बार का वो भी तोड़ती हुई बीएमसी दिख रही है। तो पूरी तरफ से यानी कि चारों तरफ से इस तपास बार के यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्रवाई जो है वो होती हुई दिख रही है। आगे का जो स्ट्रक्चर है शेड है वो गिरा दिया गया है। अब जो बुलडोजर है वो आगे की तरफ बढ़ा है, और बचा हुआ जो शेड या स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसे गिराने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करती हुई बीएमसी की टीम दिखेगी। और ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो गिरता हुआ, बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो गिर रहा है वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरी जो कार्रवाई हो रही है ये इस मिहिर शाह का जो हिट एंड रन का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद होती हुई दिख रही है। और उसमें आप कह सकते हैं कि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने भी न्याय की मांग सरकार से बार बार की है। मिहिर शाह के फादर है राजेश शाह, वो एक दिन में आप कह सकते हैं बेल पे बाहर आ गए थे, जिसको लेकर के भी उन लोगों ने कई बार आलोचनाएं की हैं। कंपेंसेशन की मांग हो या फिर जस्टिस की मांग हो, वो लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है, शायद उनके मन को कहीं शांति मिले कि कार्रवाई जो है सरकार कर रही है, उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बिजनेसमैन है, मुंबई के बिजनेसमैन है जो रेस्टोरेंट और बार चलाते हैं, उनके लिए ये एक दिक्कत का सबब है कि किस तरह से, अगर आप कह सकते हैं इतना बड़ा रिस्क है, एक दिन में
कोई इंसिडेंट होने से अगर पूरे बिजनेस पर ताला लग जाता है, उसके बाद डेमोलिशन होता है, तो बिजनेस कैसे रन किया जाए, इसको लेकर के भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जी That's Mustafa Sheikh, who's explaining to us the bulldozer action that's being taken on that Tapas Global Bar in Juhu for serving alcohol to underage patrons. In fact, the alcohol in Maharashtra can be served only to those above the age of 25. But it appears that this accused in this case, Mihir Shah, is 24 years of age. Well, his friends could be younger than that, and considering alcohol was served to them, the bar license has been suspended. This happened on July 9th. That's yesterday. And moreover, the entire bar is now being razed. This is quite a startling development that's coming to light into the investigation in the Mumbai hit-and-run case. The BMC is taking action against the Global Tapas Bar in Juhu, where Mihir Shah was served alcohol. An underage boy was given alcohol. That's the allegation against the bar. इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि जितने भी एक्शन इस पे हो सकते हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात, कल जो एक्शन लिया है वो क्या, मतलब जो सील किया है वो क्या बेसिस पे किया गया था? बिल्कुल, तो कार्रवाई चल रही है, ये आप कह सकते हैं कि बाद में कहेंगे एक्साइज ऑफिशियल जैसा कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी हैं। ये पूरा ढांचा जो थोड़ी देर पहले, आप कह सकते हैं आधे घंटे पहले तक ये पूरा एक सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर था, अब वो रेजा होता हुआ हमारे सामने ये बिल्कुल एक और बड़ी एक तरह से बुलडोजर ऊपर से चलाया गया। जो शेड का बचा हुआ हिस्सा था वो भी यहाँ पर गिरा दिया गया है। और आप कह सकते हैं कि ये आप कहेंगे कि बड़ी कार्रवाई इस वक्त मुंबई में होती हुई दिख रही है। मुंबई का जुहू इलाका है ये। आप अगर मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ी देर पैन करेंगे, अगर ये पूरे लेन में जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या तो बार है या रेस्टोरेंट है, ये जुहू का इलाका है, मुंबई का पॉश जुहू इलाका। यहाँ पर है होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब, ये सभी यहाँ पर आप कह सकते हैं इस लाइन में पूरी तरह से इस रोड पर जो है वो देखने के मिलते हैं। पृथ्वी थिएटर का इलाका है, एक तरह से हाई प्रोफाइल यहाँ पर इलाका है, या पार्टी लेन आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम ऊपर से जो है स्ट्रक्चर वो आपको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, मॉनसून शेड जो है, टेम्परेरी शेड, ये इस बार ने यहाँ पर बनाया था। फिर से आपको उसी दृश्य पे ले चलते हैं जहाँ पर जेसीबी ये कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मुंबई के जुहू हाई प्रोफाइल इलाके में ये बार था, और 2 दिनों में पहले एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई, उसके बाद बीएमसी की कार्रवाई डेमोलिशन की। ये बार आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से डेमोलिश होता हुआ इस वक्त मुंबई में जुहू में दिख रही है। तो ये दृश्य आप लाइव देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीएमसी पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। हालांकि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ये वो कांच के स्ट्रक्चर को तोड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी मजबूत और सीमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। इसको भी क्या बीएमसी तोड़ती है, क्योंकि रोड के बीच में ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो सीमेंट की दीवार भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखने के लिए मिल रही है। उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ये भी देखना रहेगा। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट होने के बाद नहीं तो क्या प्रशासन प्रोएक्टिवली जहां जहां इलीगलिटीज है उन बार्स, उन स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई करेगा ताकि ऐसी आगे कार्रवाई ना हो, उस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। फिर से उसी बार का किचन एरिया आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां से बीएमसी वर्कर इस वक्त आप देखेंगे बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर भी क्योंकि हम कह रहे हैं कि तोड़ने की जो कार्रवाई है वो जारी है। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के ये के वेस्ट वार्ड के जो लोग हैं, ये इस वक्त आप कह सकते हैं कि लेबर जो है वो अंदर गए हैं। अंदर से भी बार का जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो तोड़ा जा रहा है। और ये आप कह सकते हैं कि पूरी कार्रवाई इसलिए की जा रही है वाइस ग्लोबल तपास बार पर, क्योंकि मिहिर शाह इस बार में आए थे, जिसके बाद वर्ली में हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ। एक महिला को कई किलोमीटर पे उनकी गाड़ी से खींचा गया। वो शायद होश में नहीं थे, क्योंकि होश में ऐसा आदमी अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। वो एक तरह से एक महिला की उस पूरे केस में जान गई, जिसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में जो कार्रवाई है ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। फिर से एक बार आपको उस बार की तस्वीरें हम लोग दिखाएंगे, और वो यहाँ पर जो जेसीबी की कार्रवाई हो रही है उस पर दिखाएंगे। तो ये पूरा बात करते करते जो स्ट्रक्चर था, कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से कांच के जो शेड दिख रहा था बाहर की तरफ, वो अब डेमोलिश कर दिया गया है पूरी तरह से। अब वो तहस नहस हो गया है।
अब पीछे जो दिख रहा है टारपुलिन, ब्लू कलर की टारपुलिन दिख रही है, सीमेंट, ये पार्किंग जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सीमेंट का अंदर, जहाँ पर ये पूरा बार है वो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ऊपर टारपुलिन है, यानी कि बारिश से लीकेज ना हो उस तरह का स्ट्रक्चर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो सवाल यही है कि अब जो नीचे सीमेंट स्ट्रक्चर है उसका क्या करेगी बीएमसी, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि एक और दीवार है जो इससे जुड़ी हुई, ब्लू कलर की दीवार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है जो बाहर की तरफ है, क्या उस पर भी एक्शन होगा, और इस एरिया में और भी जो बार्स हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा क्या बीएमसी की तरफ से, उसको लेकर के भी कई जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि बड़े सवाल है। महाराष्ट्र में हम बता रहे थे आपको विधानसभा का सेशन शुरू है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये मैसेज देना था कि कड़क कार्रवाई जो है वो की जाएगी अगर लोग रूल फॉलो नहीं करते, और आम आदमी की जो जान है वो जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई कोल्ड ड्रिंक मारकर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि किसी की जान ले ले, उतना सस्ती यहाँ पर जान किसी की मुंबई में नहीं है। ये मैसेज शायद आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देना था, जो कि वो देते हुए दिख रहे हैं इस बार के जरिए, इस डेमोलिशन के जरिए। पहले एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई, पुलिस जो है वो मीडिया को पीछे करते हुए, क्योंकि एक तरह से ये स्ट्रक्चर से गिरने से या कुछ चीज लगने से हानि हो सकती है, तो ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग साफ तौर पर है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही है कि पुणे में जिस तरह का हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद भी इस तरह का एक्सीडेंट मुंबई में हुआ, आरोपी 3 दिन तक पकड़ा नहीं गया, इससे प्रशासन के ऊपर कई तरह के जो सवाल हैं वो सवाल हुए हैं। यहाँ पर चलते वक्त आप कह सकते हैं संभलना होगा, क्योंकि जो कांच है, कांच के टुकड़े हैं जो तोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, कांच का स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले जो था अब टूटकर चकनाचूर होकर यहाँ पर गिरा हुआ है। कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, रेस्टोरेंट बार बिजनेस वालों के लिए तो है, लेकिन आम नागरिक मुंबई कर के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो कितनी बढ़ गई है। और ड्रिंक ड्राइविंग इस तरह की चीज को अगर आप मजाक में लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा करता है, क्योंकि ये मजाक नहीं है। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो बचा हुआ है पीछे का कांच का स्ट्रक्चर, वो इस वक्त टूट कर चूरा चूरा होकर गिरता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एक और वहां से पीछे का एंट्रेंस है समाज बार का, ये देखिए पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बुलडोजर कार्रवाई जो है वो भारी तौर पर इस बार में देखने को मिल रही है।